कौन से चक्की का आटा खाती हो? दूसरी औरतें तुम्हारे मर्दों के पीछे दीवाने हो जाते हैं। I don't know what is it about me. I'm very possessive in a relationship. I completely believe in the institution of monogamy. आज रकुल नहीं है क्योंकि भूमि ने बोला वो रकुल के साथ इंटरव्यू नहीं करना चाहती। हर्ष को रिप्लेसमेंट पे रखा है हमने। जब दो औरतें गेट लॉन्ग नहीं करती ना, बहुत सारे लोगों को ज्यादा मजा आता है because it becomes a little more juicy gossip. Yeah. Like I have been in positions where I haven't got along with somebody that I'm working with, and most times it's not been a girl. मुझे जैसे ये आदमी पसंद नहीं है, पर अब मैं ऐसा ना मेरी तो पहली पिक्चर है, मैं तो बोल भी नहीं सकता। But Harsh, how did this film happen to you? By mistake. I don't know why. They were calling Vicky Kaushal, they couldn't get. I don't know. Are you single? हाँ, मैं सिंगल हूँ, एकदम जबरदस्त। मिंगल करना चाहते हो? मिंगल भी नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहते? हाँ, रेडिट पे किसी ने लिखा था कि हर्ष गुजराल की शादी हो रखी है और उसके नागपुर में 2 बच्चे हैं। मैंने कहा सरासर झूठ है। Hello everyone, welcome to News 18. I am Titas Chowdhury in conversation with Arjun Kapoor, Bhumi Pednekar and Harsh Gujral. Hi guys, how are you? Good, how are you? All good. Enjoying the Mumbai summers already. Is it summer? It is. I was just going to take a shawl. When because was I it feel winter? cool. Listen, no, right? The temperature few drops. days were, It was 14 degrees. I didn't know. At least on my 14 temperature chart. But Bhumi, let's start on a lighter note. We have seen in multiple films now that there are women running after your men. Yeah. Be it Govinda naam mera, pati patni aur wo, now I Mere don't Husband know. Ki Biwi. If you कौन put से चक्की का आटा खाती हो? दूसरी औरतें तुम्हारे मर्दों के पीछे दीवाने हो जाते हैं। I don't know what is it about me. That you attract all these women attracts women. towards the men. But if put in a real situation like that, do you think you can handle it or you'll just flee? Probably ढलो बता दे तू। No, I'm very possessive in a relationship. I completely believe in the institution of monogamy. Yeah. And there's no chance. I don't think I'll be able to tolerate it. No. Okay, fair enough. But I was there at the trailer launch of the film, Ji. and somebody very subtly asked you about some maybe simmering catfight between you and Rakul. But then, imagine, I mean, but Arjun, you came to the rescue. हाँ, sorry, you were saying. No, I'm just saying he came to the rescue very nicely. And but do you think while I understand this might be a myth in most cases and scenarios, do you think sometimes filmmakers can also be wary of, casting, let's say, for parallel leads? आज रकुल नहीं है क्योंकि भूमि ने बोला वो रकुल के साथ इंटरव्यू नहीं करना चाहती। हर्ष को रिप्लेसमेंट पे रखा है हमने। अब ये फैक्ट है तो इसलिए। हाँ। Yeah. इसलिए हर्ष है। हर्षप्रीत सिंह। आज मैं हस्बैंड की बीवी। बोलने को किसने कहा तुमने? मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। ये जो आपने हस्बैंड वाली चीज बोली, तो हम लोग एक हल्दी वाला सीन शूट कर रहे थे वहाँ पे स्कॉटलैंड में, और पूरी कथा सुनो। वहाँ पे ना जो वहाँ पे बहुत सारे बाराती लाए जाते हैं, लोकल बाराती होते हैं वहाँ पे, जब जो आते हैं, जैसे जो एक्स्ट्रास हम लोग बोलते हैं भीड़ के लिए, जो वो जानते हैं भाई, है ना। बोलो। मैं नया हूँ, मतलब वो पुरानी है, तुम नए हो। तो वहाँ पे 4-5 औरतें ऐसे खाना खा रही थी बैठ के, जो शूट के दौरान। तो उसमें से एक औरत ने बोला दूसरी औरत से, ये भूमि के पति का हर पिक्चर में कोई चक्कर रहता भूमि के पति। मैंने आपको बताया था ना आगे, मैंने कहा भूमि इधर क्या हो गया, ये औरतें आपस में बातें कर रही हैं। आपकी रेपुटेशन स्क्रीन पे बड़ी खराब है। कि भूमि का हर पिक्चर में एक पति का चक्कर रहता है। मैंने कहा ये शूटिंग में सच कैसे बोल रही है? Catfight, I mean, yeah, apart from the fact that Bhumi loves choosing these films where there are other women involved, which I feel shows how secure she is और कितना वो अपने आप को सीरियसली नहीं लेती और प्रोफेशन को लेती है। शी इज अलाउइंग हरसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दीस फिल्म्स। इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू ensembles करना, these kind of setups. But yeah, I think Catfights, I think like we spoke that day, it's subjective. कई बार क्या होता है, चीजें behind the scenes ज्यादा होती है। जब दो औरतें गेट लॉन्ग नहीं करती ना, बहुत सारे लोगों को ज्यादा मजा आता है, because it becomes a little more juicy gossip. Yeah, I think when men don't get along, they posture in very different ways. It's very Chinese whispery. It's messages via. When I think when women don't get along, a lot of people enjoy that women are not getting along, unfortunately, in the profession. They heighten it, they don't sort it out, they allow it to brew, because there is some kind of voyeuristic pleasure in allowing miscommunication to happen. Absolutely. And also to add, I don't think this is about the gender. It's more about two individuals not getting along. Also, yeah. Like I have been in positions where I haven't got along with somebody that I'm working with, and most times
most times not been a girl. So Okay. yeah. And it's also, even if you don't get along, your work cannot suffer. देखो, Correct. That's the also important. अगर True. work suffer होता है तो बातें होती तो फिर then it becomes, the set becomes toxic. You will not always like every person you interview, right? But you still have to do your job. Yeah. I will not always like answering every question, but if I've chosen to, then I have to answer it. Right. So you have to be professional. And I think perhaps back in the day, it took time for people to understand you've got to be professional and suck it up and do your job, even if you don't like everybody. So I think that's become more predominant now. You will not always love everyone, but you still have to coexist and create your work environment out of it. And also as women, every girl in this room included, my co-actors included, we all have shared experiences. Sure. Right? Because in the spectrum, we all in a larger bracket fall towards the same end, right? And I think those shared experiences automatically create a lot of empathy for each other, right? There is like this unsaid sisterhood, where you're like, okay, I've got your back. Yeah. Through thick and thin. We might not still be the best of friends, but in certain situations, I'll always have your back. But ऐसा नहीं है that you will always get along and love people. Absolutely. So Yeah. That's where It's the line human, is. right? You have to work. आप यहाँ काम करना है, दोस्त बनाने नहीं. But बदतमीजी नहीं करनी है. And you don't want to create a bad environment. क्या मुझे जैसे ये आदमी पसंद नहीं है, पर अब मैं ऐसा थोड़ा ना. मेरी तो पहली पिक्चर है, मैं तो बोल भी नहीं सकता. अब तुम अगली वाले में बोल सकते हो यार अर्जुन तो बड़ा बदतमीज था, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं. मैं क्या बोलूंगा, ऐसी बात मन में रखता हूँ. But have you been in situations where you really did not like the person you were working with? Yeah, I mean, Such a natural. yeah. I don't know. I can't remember. You try and make it work, yeah. You end up. See, when you do 50, 60 days of work, at some point you accept the person for what they are. It's like you're in a relationship. It's like that. It is like that. You accept as long as काम अच्छा हो रहा है, as long as वो set पे well behaved है, off camera कुछ insecurity है या चिक चिक हो रहा है या चूचू हो रहा है या अनाप शनाप चीजें सुनी जा रही है. If the work is not suffering, you let go of it. Yeah? So I won't say I've gotten along with everyone, but quite a lot. Yeah. And I've been very fortunate because I've grown up here. You do know how to handle situations and people. It helps. So maybe I was more prepared. I think they would be better people to ask how it feels to come in from the outside. देखिए हमारा तो बड़ा मुश्किल है. देखो हमारा इजी इसलिए क्योंकि हम लोग कॉमेडी में एवरी डे वी गेट द बोथ साइड ऑफ द रिस्पॉन्स हमें मिलता है. क्योंकि हम स्टेज पे जाते हैं, उसमें से अगर 10 लोग बैठे हैं कॉमेडी देखने के लिए तो उसमें 8 हंस रहे होते हैं और 2 तो यूं ही कर रहे होते हैं बैठ के. बिकॉज लाइव फॉर्मेट में आपको पता नहीं होता, तो आपको एडजस्ट करना तो आ ही जाता है लोगों के साथ कहीं ना कहीं कि अच्छा ये मुझे पसंद करता है, ये मुझे नहीं करता है. और दूर बैठ के जब बॉलीवुड काम के प्रति, वही मैं कह रहा हूँ, देख काम के प्रति जब तुम सेट पे आते हो, फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, बट sometimes when you're new you want everybody to like you ना, कि सब आपको पसंद हमारे करें. ऊपर भी तो प्रेशर होता है ना प्रूव करने का कि नहीं हम इनके सामने भी अच्छे हैं, इनके सामने भी अच्छे हैं. बट धीरे धीरे करके आई थिंक जब आप वो जो वैनिटी मिलती है हम लोग को, उससे बाहर निकलो तो सब कुछ भूल के निकलना चाहिए कि भाई पीछे कुछ नहीं है, है ना. क्योंकि आप जब सेट पे जा रहे हो, अगर आप माहौल खराब बना लोगे या आपके साथ खराब बना तो इस पोस्टर में दिखाई देगा. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, अभी इस पोस्टर में आपको देखो सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना. नहीं एक्चुअली जो पोस्टर है जिसमें ज्यादा खुश दिखाई दे रहे वो ये दोनों. पिक्चर का बाहर देखो किसके. मैं कोई भी पोस्टर में खुश नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारी वजह से. Arjun is distraught. I'm upset in every poster because of Harsh Gujral, not the two. अर्जुन भाई को मैंने पीठ पे बिठा लिया और क्या चाहिए. Sorry. नहीं और क्या चाहिए, तुम ना होते तो बेटर ही होता. असली घोड़ा आ जाता कोई. But Harsh, how did this film happen to you? By mistake. I don't know why. They were calling Vicky Kaushal, they couldn't get. I don't know. विकी छावा कर रहे थे तो मैंने यहाँ छावा कर लिया. No, but seriously. But आज भी मुझे याद है. मतलब did sir spot you at one of your stand-ups? अच्छा. शो तो कुछ तो देखा. मैं बताता हूँ. He must have seen a reel or मैं video. 1 घंटे का एपिसोड सुनाता हूँ. There is a कानपुर की वीडियो, मेरी कानपुर की वीडियो है जो मुदस्सर सर ने देखी हुई थी, जो उन्होंने बाद में बताया. बट भोपाल का एक शो था और 9 बजे का शो था और 8:45 बजे मुदस्सर अजीज का फोन आया मेरे पास कि मुदस्सर अजीज. कानपुर की वीडियो मतलब तुम्हारा कोई स्पेशल था कानपुर में? एक था 16 मिनट की एक वीडियो है ऑनलाइन, जो वहां पे तो वो मुदस्सर सर ने देखी हुई थी कहीं पे, तो तो उसके दिमाग में था. और तुम्हारा एक दिन भोपाल में शो हो रहा था. एक दिन भोपाल में शो. अब कहानी समझ में आई ना, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी है भाई. अरे पर उनको तुम्हारे नरेशन नहीं समझ आई भाई. अच्छा मैं थोड़ा और मुदस्सर सर के हिसाब से समझाता हूँ. गए ना, समझ गई. वो भी
बोल रही मैं समझ गई मैं आगे समझ गई। मेन बात तो आई नहीं है बहन। अच्छा intro समझ गई क्योंकि अर्जुन simplified it for me. कानपुर का एक एपिसोड है इनका 16 मिनट का, भोपाल में कर रहे थे हर्ष गुजराल शो और आया मुदस्सर अजीज का फोन। फिर? 9 बजे का शो, तब 8:45 बजे पौने नौ मुदस्सर बजे का फोन फोन आया कि मैं मुदस्सर अजीज बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कह रहे मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा बताइए। कह रहे तुम्हारे लिए एक रोल लिखा है, करोगे? मैंने कहा मेरे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये था कि मुझे हर एक महीने में किसी का कॉल आता था कि तुम्हारे लिए एक रोल लिखा, और फिर वो बंदा गायब हो जाता था। रोल लिख के या तो fake वो calls थे। हाँ फेक कॉल आ जाते थे। तो मैंने वो कहा भस्सी से फोन करता था अलग अलग नंबरों से और कुछ नहीं। वो फिर मैंने कहा, फिर कह रहे नहीं नहीं तुम्हारे लिए लिखा है ये वो करके उन्होंने 15 मिनट। मैंने कहा ऐसे मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मैं वापस आपको फोन करूंगा। मैंने रात को 12 बजे फिर उनको फोन किया। मैंने कहा आप सच बोल रहे हो ना? तो कहता ईमेल भिजवाऊं? मैंने कहा उसके बाद ईमेल आने के बाद भी मैं उनको रोज फोन करके पूछता था। फिर उन्होंने सच है। फिर तीसरे लेकिन निकाल तो नहीं दिया। हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ रोल के बारे में पूछना है। मैंने कहा कुछ नहीं पूछना है। कह रहे स्कॉटलैंड में शूट कर रहे हैं। मैंने कहा डन है भाई। मैंने भी बोला डन है। It's my first स्कॉटलैंड और लंदन में शूट है। international outdoor. मैंने कहा मैं तो Listen, have you seen where all I've shot only like in one village in MP, in Thank UP. You for Coming was also Delhi. Yeah, when they said Scotland, I said I'm on. मैंने कहा मुझे 10 years स्क्रिप्ट भी नहीं सुननी मुदस्सर है। सर ने बोला कि भाई अर्जुन कपूर है, उनके ऑलमोस्ट भाई का रोल है। मैंने कहा मैं उनकी बहन का तैयार कर आप स्कॉटलैंड लेके चलो मुझे। भाई मेरी बहुत बहन है, तू भाई तक नहीं गए। तो वहां से ये रोल आया। फिर Right. जब वीजा की वो भाई प्रोसेस शुरू हुआ, उतनी डिटेल में नहीं बस, घुसना। मेरा उन्होंने पूरा 3 सवाल interview पूछे, खत्म कर इंटरव्यू दिया। खत्म हो गया। तो भाई फिर मुझे कुछ लगा और कि अब पक्का हो गया मेरा। और फिर मैं भाई तुम्हारा पक्का और इनका इंटरव्यू खत्म हो गया। पूछ लो कुछ। वो बोल रही खत्म हो गया इंटरव्यू। 25 मिनट तो तुमने बताया तुम्हें पिक्चर कैसे मिली। पिक्चर तो 2.5 घंटे की है, भी बहुत कुछ बताया। ठीक है, हाँ जी। इनके पास 8 मिनट होते हैं Unhinged. इंटरव्यू। प्लीज आस्क। Okay, no, Next Bhumi, question. I was asking भाई you कल that इसको सोलो करा दो। हाँ इसके अंदर बहुत आग है। first film है ना, तो हाँ बनता पर है। हाँ, तो मतलब आपका excitement। इंटरव्यू हाँ, फॉर मेरा time हजार है, प्राची please. हाँ, sorry. So Bhumi was saying कि the last time I spoke to you, it was post Thank You for Coming, and you said that that was an important film in the sense that people started viewing you as this glamorous urban girl, which is what you said. I have only been doing films in the heartland of India. So do you think that has really sort of set a precedent in terms of this one also? You're playing pretty much a glamorous urban woman. That has set a precedent in any Yeah, way? actually, in this girl, there's still a lot of desi-pan, which I love. And I mean, I'm not necessarily going after parts that make me look a certain way. I've always only gone after stories. When I did Thank You, it was refreshing for me as an actor because it was my first time playing a part that visually is closer to who I am. And I think even what I'm doing next is somewhere in the spectrum. But can I tell you, I miss doing Heartland cinema. I miss it so much. I want to go back and do like another Dam Laga Ke, Shubh Mangal, like, where I'm in some remote part of India and all I'm doing is doing this film with the most amount of honesty. I miss How those lovely. parts. I miss it so much. How lovely. But guys, it's Valentine's Day today. The film is about love. And Can yet you we are quickly- here. what to do. Anyway, so what I'm saying is, tell me quickly, what's your take on love today? Modern day love. ये हर्ष से पूछ लो पहले। Yeah, हाँ let जी, him please start. बोलिए। क्या क्वेश्चन है? सुनने में अचानक Bad लव की student. बात आई तो मैं गायब ही हो गया। मैंने कहा Bad student. नहीं, मैं पूछ रही हूँ, what's your take on modern love? Are you single? हाँ मैं सिंगल हूँ एकदम जबरदस्त। मिंगल करना चाहते हो? मिंगल भी नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहते? Oh! टाइम नहीं है ना ओ भाई। बिजी आर्टिस्ट। पहले मैं सिर्फ कॉमेडियन था, अब मैं एक्टर भी हूँ। लव विल हैव टू वेट। तो लव का तो ये है कि हो जाए जब तो ठीक ही है, वरना ना भी हो तो चल रहा है काम बढ़िया, I agree. है ना? क्या बात उससे है। मजा आ रहा है I agree. अपना। जो दे उसका भी भला, जो ना आप दे सोचो उसका 3 भी दिन से मैं रोज रात को पहले वो गाना आया था अपना बोले चूड़ी, वो बोले चूड़िया गोरिया कलाई, बोले चूड़िया गोरिया चूड़िया बदल के एक दूसरा वर्ड है जो ऑफ कैमरा बोलूंगा तुझे। गोरिया चलाइया, गोरिया चलाइया, गोरिया चलाइया गोरिया चलाइया। ठीक है, पहले मैं भाई, रोज 2 दिन से वो सुनता इनको रहा। ले जाओ। कल एक बारी आया, मैं पूरी रात एक बारी अस्पताल सुनता में रहा। एडमिट करा। पॉइंट क्या है? Point सारा ये है- love से क्या लेना देना? लव से ये लेना देना है कि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई, अपना I काम get it. इतना प्यारा हो Honestly, गया। I also feel when you're so happy in life, and हाँ, when you you don't feel need like anyone. complete, I kind of resonate with what he's saying. Not the way he said it. No. No, but I'm asking, what's your take on it? How do you want? What's your ideal? My ideal love just needs to be comfort. Just अरे comfort. ideal मतलब दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए एक होता है ना. Like this is what would you wants want first. out Yeah, of yeah, love? Exactly. I think what I want out of love is just Someone to share silence as well. yeah, Yeah, that's very important. where I can just be with the person.
That's it. दो अलग जगहों पे भी हो, एक ही एरिया के अंदर, अगर if you're in two different spaces also, you should still be connected but don't have to speak all the time. You're sharing without realizing. I guess there has to be comfort, there has to be ease. You should look forward to finishing this day and going back to spending that time with the person. It doesn't have to be that you want to go and be in love. It just means that you want to build a life together. Just ease. Yeah. That's comfort. Ease. आई थिंक जो हमारे शहर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज हैं उनके लिए लव का ये तो पहला मुद्दा है कि अगर कोई लड़का या लड़की कुछ लाइफ में अलग हटके करना चाहता है, पैशन वाइज करना चाहता है, या कोई अपना ऐसी चीज़ फॉलो करना चाहता है जो उसकी फैमिली में कभी फॉलो नहीं हुई हो, उसके पार्टनर को वो समझना बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो मेरा फिलहाल मतलब टचवुड ऐसा शेड्यूल है कि मैं या तो जमीन पे हूँ या तो हवा में हूँ या तो तो आई थिंक वो समझना बहुत ज़रूरी है, आपका एक दूसरे को हाँ मतलब प्रोफेशन समझ रहे हो ना, प्रोफेशन समझना बहुत जरूरी है। आधा टाइम तो कलेश तो टाइम के चक्कर में हो जाता है कि तुम्हें टाइम नहीं देते। और जो आजकल के कपल्स हैं उनको टाइम भी दो तरह के चाहिए, एक नॉर्मल टाइम चाहिए, क्वालिटी टाइम भी चाहिए, वो अलग से है। ये तुम्हें ये नहीं पूछ रही तुम्हें क्या चाहिए और उसको क्या समझना मुझे तो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो लग ही रहा है तुम्हें कुछ मिलने भी नहीं वाला ये जवाब के बाद। So I think क्योंकि तुम तो बोल रहे हो तुम तो खुद से बहुत खुश हो। एक दूसरे का काम समझना, एक दूसरे की चीजें समझना। तुम रिश्ते में कभी थे इसके पहले? Actually, have you ever been in a अरे भाई मैंने कल ही अरे भाई नहीं है वो बहन है पहले। हाँ मैं ये कह रहा था, मेरे को कल किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपके बारे में कोई अफवाह उड़ी है, तो मैंने कहा हाँ रेडिट पे किसी ने लिखा था कि हर्ष गुजराल की शादी हो रखी है और उसके नागपुर में 2 बच्चे। मैंने कहा सरासर झूठ है, शादी मेरी एक भी नहीं, बच्चे मेरे 2 नागपुर में हैं। तो मैंने उसको जोक में टाल दिया। मैंने तुम्हें जो सवाल पूछा है हाँ। तुमने उसके अंदर ही दूसरा गंदा जोक, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता कि मैं रिलेशनशिप में रहा हूं कि नहीं रहा हूं। तो बोलो नहीं बताना चाहते, मतलब ब्रेकअप हो गया ना अब तो क्या। हाँ तो ठीक है बस बोलो ना, तुम इंसान हो। हाँ ब्रेकअप हो गया भाई इसको ले जाओ कोई यार। कोई बात नहीं guys. Thank you on that note. Or this Valentine's Day. आप बताइए आपके लिए लव की क्या डेफिनेशन है मैम? जो भूमि ने बोला इट्स द सेम। ये तो कॉपी हो गया ना मैम, अपना कुछ बताइए। पर मुझे सेम लगता है तो मैं क्या बोलूं ना। नहीं correct. है ना, that's all we really want at the end of the day. But thank you guys so much. Thank you. I'm looking forward to this one. And 21st of February. As the internet is calling it, this is your Lolo era. My God. आप सब जाके टिकट भी लो। Thank you so much.